جی السلام علیکم، بہت بہت آپ کو عید مبارک. میں ہوں غریدہ فاروقی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں جی فار غریدہ کا عید اسپیشل کا پروگرام. چاند عید کا ہو، رمضان کا ہو، چاہے کسی بھی اسلامی مہینے کا ہو، اس کے دیکھنے کا ایک تنازعہ پاکستان میں ہمیشہ سے رہا، لیکن اس دفعہ یہ تنازعہ ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی تاکہ ملک بھر میں ایک ہی چاند نظر آ سکے. لیکن آج کی جو ہم نے یہ عید کی محفل سجائی ہے، اس میں ڈھیر سارے چاند اکٹھے کیے ہیں، اور ایسے چاند کہ جو بہترین قسم کی چمک دمک والے ہیں اور جن کے آپس میں کوئی تنازعات نہیں ہیں، جن کے دیکھے جانے میں بھی کوئی تنازعات نہیں ہیں، جن پہ سب ایگری کرتے ہیں. آپ لوگوں نے ان کو پروگرامز کرتے ہوئے کرنٹ افیئرز کے تو بہت دیکھا ہوگا، لیکن آج ہم سیاست کی کوئی بات نہیں کریں گے، صرف عید کی، ملن کی، پیار محبت کی بات کریں گے. تو آج عید کے اس خوبصورت دن پہ آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہوئے میں اپنے انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں جو آج میرے پاس عید کے بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. سب سے پہلے میرے ساتھ ہیں سلیم صافی صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، دانشور ہیں، ہم سب میں بہت سینئر ہیں. میں ایکسپیرینس وائز کی بات کر رہی ہوں. دوسری بات کروں گی تو صافی صاحب مجھے تو کچھ نہیں کہیں گے، دل میں بہت کچھ کہیں گے. صافی صاحب جیو نیوز پہ پروگرام کرتے ہیں، جرگہ، بہت کمال، بہت زبردست. ان سے میں نے خود بھی بہت کچھ سیکھا ہے اور ہم سب کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. صافی صاحب کے ساتھ ہے فریحہ ادریس صاحبہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اب تک پہ بہت کمال پروگرام کرتی ہیں. ٹونائٹ ود فریحہ ادریس، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم آپ دونوں کو، بہت بہت عید مبارک. خیر، وعلیکم السلام، عید مبارک. آپ سے تو عیدی بھی لینی ہے، میں ذرا باقیوں کا انٹروڈکشن کروں. یہ جتنا مبالغہ آپ نے کیا تو عید والے دن ظاہر ہے اسی لیے کیا ہے نا کہ آپ عیدی دیں گے. اچھا میرے اس طرح بیٹھے ہیں جناب، بیٹھی ہیں یشفین جمال صاحبہ، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت اچھا، بہت بہترین پروگرام کرتی ہیں، ہم سب کی بہت اچھی دوست ہیں. نیو ٹی وی پر، نیو نیوز پہ پروگرام کرتی ہیں، نیوز ٹاک ود یشفین جمال. آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. السلام علیکم یشفین. آپ کو بھی بہت ہی مبارک. تھینک یو سو مچ آپ کو آنے کے لیے، آنے کی وجہ سے جو نا یہ بڑی خوبصورت ہو گئی ہے. میں تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس. یشفین صاحبہ کے ساتھ ہیں جناب عادل عباسی صاحب، سینئر صحافی ہیں، بہت عرصے سے صحافت کر رہے ہیں، ایئر وائی نیوز پہ پروگرام کرتے ہیں. اعتراض ہے، لیکن آج نہ ہمیں کوئی اعتراض ہے نہ عادل عباسی صاحب کو اعتراض ہے، صرف پیار ہے آج کے دن. عادل عباسی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک. عید مبارک آپ کو بھی. خیر مبارک. آپ سے بھی عیدی لینی ہے. میں بھی عیدی دوں ہم گا. سب نے، خواتین ہیں نا تو سیلری نہیں آئی ہماری. آپ آگے بڑھتے ہیں. آواز نہیں آ رہی ہے. آج کل بہترین آپ کے پاس بہانہ ہوتا ہے، اگر آپ سے کوئی کہے کہ پیسے چاہیے، آپ کو سیلری نہیں ہے، چاہیے یا نہ ہے نا. عادل اپنے پروگرام کے نام کی طرح آتے ہی اعتراض بھی کرو. میں نے کہا تھا کہ آج اعتراض گفتگو نہیں ہوگی. اچھا میں لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، بہت پیاری، بہت اچھی، ہم سب کی پسندیدہ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، امبر شمسی. آپ ان کو سمر ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، پروگرام کرتی ہیں سوال. السلام علیکم امبر شمسی. وعلیکم السلام. بہت بہت عید مبارک آپ کو. سوال آپ سے، عید کا دن کیسا ہے؟ عید کا دن بہت اچھا ہے. یہاں تو اصل عید تو اس وقت یہاں نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کے آنے کی وجہ سے. سیریسلی یہ اس کے آپ لوگوں کے بغیر یہ سب کچھ بیکار تھا، بے معنی تھا. سلیم صافی صاحب، ہم سب کو عیدی دینی ہے آپ نے، کیونکہ ہم سب میں سے سینئر ہیں. ایک تو وہی تنخواہ والا معاملہ تھا. آپ تو پوری سنے نا. دوسرا ظاہری بات ہے میں جیو میں بھی ہوں. تیسری بات آپ لوگوں نے تو دیکھیں، اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا آج کل، آپ سب تینوں چاروں خواتین نے تو اپنے لیے چاروں خواتین، ہاں چاروں خواتین صاحب کی گنتی ٹھیک نہیں، کافی زیادہ روزے رکھ لیے. دماغ کام نہیں کر رہا. اب اس میں تو آپ لوگوں کا دماغ تو ہی چل رہا تھا کہ اپنے سب کے لیے اپنی چوڑیاں منگوائی ہوئی ہے، ہم مردوں کے لیے کیا منگوائے. سوئیاں نظر آ رہی ہیں مجھے ویسے یہ گفٹ سوئیاں نظر آ رہی ہیں. نہیں، ہم نے یہاں پر لفافے منگوائے تھے. وہ کدھر ہیں؟ جس کے آپ ہمیں عیدی ڈال کے دیں گے. لفافے وہی میں کہہ رہی ہوں، یہ تو بڑی ڈینجرس چیز منگوا لی ہے. نہیں یہ بولا نہیں، وہ لفافوں والی حکومت ختم نہیں ہوئی ہے دینے والی؟ ختم ہو گئی. تبھی تو آپ سے مانگ رہے ہیں. ختم نہ ہوئی ہوتی تو آپ کے پاس خالی کیوں ہوتے لفافے؟ یہ بات درست ہے بھائی. لفافے کہاں ہیں؟ ہم نے آج عیدی لیے بغیر سلیم صافی صاحب کو یہاں سے جانے نہیں دینا. امبر، ہاؤ از یور عید؟ اب انہوں نے اتنے مشیر رکھ لیے ہیں سارے میڈیا سے لے کے کہ میرے خیال میں وہ سارے لفافے ان کے پاس جا رہے ہیں. صافی صاحب چھڑ دیو عید دا پروگرام جی، آج بس کر دیو. اچھا آج جانے دے، آج معاف کر دیں، آج بخش دیں.
हमें उन्होंने ईद मनाने के काबिल ही नहीं आज तो छोड़ा। आप एक प्यार भरा ईद मुबारक का पैगाम भेजना चाहिए आपकी तरफ से वज़ीर आज़म को, That's a very good idea. है ना? आपकी तरफ से आज जाना मेरी चाहिए। तरफ से मुबैना वज़ीर आज़म को दिल्ली ईद मुबारक। अच्छा आप आगे बढ़े। दिल्ली या दिल्ली? हाँ दिल्ली बार के जियो से आवाज जा रही है दिल्ली। अंबर, आपकी ईद कैसी गुजरती है, कहाँ गुजरती है? घर पे गुजरती है, इस्लामाबाद में गुजरती है। इस्लामाबाद और- में? बिल्कुल इस्लामाबाद में गुजरती है। और मैं इस्लामाबाद की क्योंकि- ईद तो बिल्कुल मशहूर नहीं होती। लेकिन मैं हमारा घर जो है एक मरकजी घर है फैमिली में, ससुराल सारी में। फैमिली इकट्ठी हो क्योंकि जाती है। मेरी सास मेरे साथ रहती हैं, सबसे बड़ी हैं, तो सब मिलने आते हैं, तो खाना हमारे घर होता है। तो भरा पूरा घर होता है आपका। बिल्कुल बिल्कुल पूरी अच्छा, भरपूर हमारे बारे में लोगों को जो है एक तस्वुर होता है कि शायद सेलिब्रिटीज हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पता नहीं इनका लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता अंबर। हमारा लाइफस्टाइल एक आम पाकिस्तानी की तरह का होता है। नहीं, वैसे ये नहीं कह कैसे सकते। सबक ले सब इतनी अच्छी बहुएं बन जाए कि सास आपके पास रहें। ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है फिलहाल। आप यशवीन से फरीहा साहिबा से मशवरे पूछ सकते चाहिए हैं। तो मुझसे ले सकते हाँ अच्छा, ये तो बड़े कमाल के मशवरे आपने दिए। ऐसे मशवरे तो ऐसी कमाल की बहू कि सास साहिबा खुद आकर उनके पास रहना शुरू करें ईद पर। हैं। तो जाहिर है फिर सब लोग हमारे घर आते हैं हाँ। और तैयारी होती है और खाना होता है और फिर यही होता है। मतलब जो नॉर्मल ईद होती है आपकी बिल्कुल वैसी हाँ, थोड़ा नॉर्मल सा मिलना जुला ईदी देने वालों में से है कि लेने वालों में से है? अब तो जाहिर है उम्र के इस हिस्से में है कि हम देने वाले और सास साहिबा से तो ईदी मिलती हाँ, होगी। जाहिर है, हाँ, किस हिस्से में आप उम्र के? उम्र के उस हिस्से में जहाँ पे ईदी देनी होती है। आदिल पड़ती है। आदिल ये ब्लास्फेमी कर रहे हैं आप नहीं, सीरियसली। मैंने नहीं, उन्होंने खुद कहा कि मैं उम्र के और उस हिस्से में हूँ जिससे बता रहे हैं कि किस हिस्से में। उस हिस्से में जहाँ देनी पड़ती है, जैसे आपको भी देनी शायद पड़ती होगी। आदिल शक हमेशा रहना चाहिए, मतलब नहीं, हमारा वैसे जो ज़रा मशरकी जो कल्चर है उसमें तो बड़ी छोटी एज से आप ईदी देना शुरू कर देते हैं। आपके पास कहीं से ईदी भी आई हो, अपने छोटे जो लोग हैं आप उनको देना शुरू ये कर कौन सा देते हैं। कल्चर है यहाँ ईदी देने वाला? नहीं, नहीं, मैं कम तो बहुत छोटी एज से ईदी दे रहा हूँ। मैं तो जब आपका दिल कितना बड़ा है, बड़े generous है। तो मैं आपका अपने दिल जो बड़ा छोटे generous cousins है। थे उनको ईदी देता था। जो छोटे ऐसा बच्चे मैं हैं, बिल्कुल भी नहीं करती थी वैसे। लेती थी 9 साल की उम्र तीनों में खवातीन ने लेती थी। इत्तेफाक से मेरी तरफ, बल्कि चारों ने इत्तेफाक से मेरी तरफ देखा। हम तो बहुत छोटी एज से ईदी दे भी आपका रहे दिल हैं। बहुत बड़ा इधर है। से आज इसका अमली मुजाहरा करके जाइएगा आप यहाँ से। क्योंकि अगर मुझसे कोई छोटा नहीं है ना, वरना मैं दे देता। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अच्छा मैं तो सोच रही हूँ कि ईदी को हमने एज से क्यों जोड़ दिया है? ईदी को हम किसी और चीज से जोड़ देते हैं, उस तक से सब डिफेंसिव हो गए हैं। हमारे घर में तो एक उसूल है, जो कमाता है वो ईदी का देता एज से है। कोई ताल्लुक नहीं है। एग्री विद आई थिंक लेट्स जस्ट टेक एज आउट ऑफ इट, है ना? वैसे भी कहते हैं women and music should never मेरा be ख्याल है dated. ईदी जो है ना मोर और लेस आईएमएफ के Men लोन की can तरह be होती है। dated. इधर से आपने हाय हाय क्या क्या बात। कैसे आती है? ईदी मोर और लेस आईएमएफ के लोन की तरह होती है। इधर से आपने इधर नहीं, चली जाए। वैसे मैं तो बहुत बचा के रखती हूँ। I love doing that. मैं तो सीरियसली मैं तो बचा अब वो के बचाने का भी रखती आपको हूँ। फायदा नहीं है ना, डॉलर महंगा हो गया। नहीं, अब तो बहुत कौन सा डॉलर में मिलती है, मिलती है, इसलिए बता जाओ कि आजकल तो हर चीज डॉलर में कन्वर्ट। आई थिंक ईदी की जो खुशी आपको होती है ना, नहीं, ये डॉलर में ईदी दे आप। नहीं मुझे कोई नहीं देता ये डॉलर। तो आपका दुख है ना, ये मजबूरी दुख क्यों इसको फिर आपको डॉलर में मिलती है। मेरी तो फैमिली बारे में तो पाउंड मुझे भी मिलती है। एफबीआर के चेयरमैन शब्बर जैदी साहब, ये इधर एफबीआर के चेयरमैन शब्बर जैदी साहब मुझे लग ले डॉलर्स में मेरी चाचा सवाल ये है कि आप क्या वो बात है कि हम आजकल कैंपेन चला रहे हैं कि डॉलर्स में ईदी कैसे मिलती डिस्करेज है? करें डॉलर की बाइंग को। हम तो कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन इवन देन आपके अगर रिलेटिव बाहर हो तो वो आपको उस करेंसी में ही देंगे। अच्छा मतलब इसका करने के बावजूद हवाले कराने से तो बेहतर है ना आप डायरेक्ट करेंसी दें। इसमें तो बहुत बाहर से तो variety है। में जाहिर है फिर इजाफा हो रहा है वाह आपकी क्या वजह बात से। है। इस zaman में मैंने आपसे कहा ना, ये लोन की तरह उधर आई उधर गई। सही बात है। और हमारे घर की जो माँ है ना, वो इस ईदी पे अब्दुल हफीज शेख बन के बैठ जाती है या IMF का MD बन के बैठ जाती है। मुझे मैं याद के बचपन में जब बड़े हो गए तो फिर तो छुपा छुपा के बचपन में हमेशा अम्मियां नजर रखती थी किससे कितनी ईदी मिल रही है। नहीं और फिर बार्गेनिंग नेगोशिएशन भी होती थी कि इतने रख लो, इतने मुझे दे दो। मैंने उसको थोड़े दिए तो मैं ज्यादा दे देती हूँ। रीड टू द पॉइंट कि ये IMF के लोन की तरह है। लेकिन मुझे इससे इस बात बहुत दुख है कि मुझसे अम्मी ये कह के लेती थी कि बेटा मेरे पास सेफ रहेगी। वो इतनी सेफ रही थी कि वो कभी बाजार का खजाना वाला हाल है, तो हमारे पास सेफ रहेंगे और उसके बाद टैक्सेस। आपको फ्री फ्लोट की इजाजत नहीं दी। नहीं बिल्कुल नहीं। आई ऑलवेज बिलीव्ड हर कि रख ले सेफ है, अब ये के बाद वो सेफ ही हो जाता है। आपको भी डॉलर्स में मिलती है ईदी?
नहीं जी, आप डॉलर्स में देते हैं ईदी? नहीं जी, सब रुपए में आप चलता करते क्या हैं साफी साहब फिर? है। रुपए में लेते हैं, रुपए में खर्च करते हैं। रुपए में लेते हैं, रुपए में हाँ। खर्च। आपकी ईद कैसे गुजरती है ठीक ही गुजरती है। और आज कैसी गुजर रही? आज से अच्छी गुजरती है ये आप साफी साहब फंस गए हैं? आज का दिन आज टीवी में अच्छा गुजर रहा है बस। बढ़िया। साफी साहब अब आप बस मुस्कुराते रहें सिर्फ हम सबकी बातों पे। ठीक है, ठीक। बढ़िया। आपकी ईद नॉर्मली बिकॉज जानना चाहते हैं लोग, आप सबके जो माशाल्लाह फैंस हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ये मैंने शायद आप लोगों में से किसी को कभी ना बताया, बट आई एम अ फैन ऑफ एवरी वन ऑफ यू, और मैं इन सब के so प्रोग्राम्स sweet. जरूर देखती हूँ ताकि हर एक से लर्न करने को कुछ मिलता है। है। मुझे अंबर का सबसे प्यारा, ये हंसते मुस्कुराते ऐसे ऐसे सवाल कर जाती हाँ, ये है तो है। कि मतलब अगला बंदा परेशान होकर बैठ जाए कि ये अंबर ने सवाल किया, और वो अंबर की शक्ल देख रहा था तो अंबर मुस्कुरा रही होती है। सर ये अंबर की बहुत अच्छी बात है, एक जर्नलिस्टिक क्वालिटी है। मतलब सबकी मैं बताऊंगी, आदिल बहुत कड़े सवालात करते हैं, आदिल का फेस हमेशा बहुत सीरियस होता है प्रोग्राम में। आप आदिल के फेस एक्सप्रेशन से अंदाजा नहीं लगा सकते कि आदिल आपको कहाँ जाके पकड़ने वाला है। यशवीन जितनी फ्रेंडली, जितनी स्वीट है, अपने प्रोग्राम में भी वैसी ही होती है, वेरी फ्रेंडली, वेरी स्वीट। फरीहा अगेन अ वेरी असर्टिव, वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, अपने प्रोग्राम में सामने आ रही होती है जैसे ये रियल लाइफ में भी है। एंड साफी साहब के बारे में क्या बताएं? तो शरीफ आदमी। साफी साहब कमाल ही हैं, देहाती गरीब आप है। बाकमाल शख्सियत है। साफी साहब हर सवाल कर देते हैं, हर सवाल कुछ भी सवाल कर सकते हैं। इनका जो पॉजिटिव पॉइंट है ना, वो इनका मध्यम लहजा है, यस, वो मासूमियत से ही करते हैं। मासूमियत। आप जैसे लोगों के सामने बेटा इंसान ले जा मदम ना हो तो क्या हो। नहीं नहीं, आप बाकियों के साथ, हमारे साथ तो आपको मध्यम रखना ही पड़ेगा, हम भी एंकर्स ही हैं। सीरियसली। हमें आज पता चला कि आप जो है अच्छी एंकर होने के साथ साथ जो है माहिर, इसको क्या कहते हैं, शख्सियात कहें या माहिर चेहरियात कहें। एक नई टर्म कॉइन कर देते हैं हमारे चेहरियात। आप मर्दूम शनासी भी कह सकते हैं इसको। तो जारी बात है, पठान हो इतनी उर्दू अगर मुझे आती होती है नहीं, उर्दू तो आपको आती है, खैर अब ये इसके ऊपर डिबेट नहीं आप कर लोगों के साथ बैठ के ये आप ही इस किस्म के मजाक कर सकते हैं, हम करेंगे मजाक तो लोग काफी संजीदगी से लेते हैं। संजीदगी से इसको लेंगे। एक ये छोटी सी लिबर्टी break- है बंदों के नहीं पास। नहीं, उसमें किसी वो तो हमारी मुजक्कर मुअन्नस की वोलट है पश्तो का, उसका कमजोरी है हमारे इसमें, वो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। हाँ, इसलिए खान साहब भी वो बिलावल साहब को साहिबा बोल गए थे ना। नहीं खान साहब तो खैर वो गलत करे, क्योंकि जहाँ खान साहब खान साहब लाहौर में बड़े हैं, उनको साहबा और साहिब का फर्क मालूम है कोई। एक छोटी सी ब्रेक लें, एक हाँ, छोटी ले। सी एक लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक और वापस आके ईद की बात करेंगे, सियासत की कोई बात नहीं करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। हमारे साथ चांद सितारे करंट अफेयर्स इंडस्ट्री के जर्नलिज्म के आज मौजूद हैं आदिल अब्बासी साहब, सलीम साफ़ी साहब, फरिया इदरीस साहिबा, अंबर शमसी साहिबा, यशवीन जमाल साहिबा। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, साफ़ी साहब ने कोई ईद का प्रोग्राम रिकॉर्ड किया हाँ और उसमें आपने क्या कहा है? फरीहा थी आपके प्रोग्राम में? फरिया के प्रोग्राम में थे। अच्छा, फरीहा के प्रोग्राम में थे। इन्होंने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें की। क्या कहा इन्होंने? उसमें मैंने इनसे कहा कि देखिए ये मामला तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये जो आप लोग डिबेट करते हैं कि जी ख़वातीन इज़्ज़त और फलां, तो मैंने इनसे कहा कि देखिए मेरे लिए इस पूरी जो इस वक्त कायनात है, हाँ, इनकी सबसे बड़ी मोहतरम हस्ती, ठीक, जिसका मैं सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम भी समझता हूँ, जिनसे मुझे डर भी अगर किसी एक हस्ती से लगता है, आपने कहा डर था भी डरता उससे हूँ मैं लगता है, उनसे। प्यार भी उससे है, सब कुछ है। मैंने कहा वो मेरी माँ है बिल्कुल सही और वो एक खातून है। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा दुनिया का हर मर्द जो है वो अगर दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती समझते हैं तो एक खातून को समझते, तो आप लोग इस डिबेट में क्यों हमारे साथ? नहीं, ये अंबर क्या बात हो रही थी? हर खातून आपकी माँ नहीं हो सकती। मैंने ये कहा लेकिन था, एक बात ये भी है ना, हर खातून आपकी बीवी भी नहीं हो सकती। ये भी सही है, बट लेकिन आर्गुमेंट बीवी के लिए फिर भी ऑप्शंस है ना, वो मैंने इनसे कहा कि माँ माँ होती माँ है। माँ ही होती है। उसकी उसका बहुत कोई से लोग आपकी मुद्दा बात से नहीं। डिसएग्री भी अच्छा, करेंगे, मैंने बहुत से इनसे मर्द कहा- हजरात आपकी बात से डिसएग्री करेंगे, हर औरत बीवी भी नहीं हो सकती। जिसमें आप दाएं बाएं भी नजर दौड़ाएंगे तो बहुत से आपसे डिसएग्री करेंगे। तो जाहिर है पैरेलल इकोनॉमी तो चलती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त जो बाकी दूसरी डॉक्यूमेंटेड बात इकोनॉमी मैंने है इनसे ये कही थी
یہ آپ نے معیشت کب سے سیکھ لی؟ یہ حالات جس طرح کے IMF کا لون ہوتا ہے, شادی ڈاکومنٹڈ اینڈ بلیک اکانومی کی صورت. اگر آپ دیکھ لیں, اگر میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں مجھے چیلنج کریں. پیریلل اکانومی اور ڈاکومنٹڈ اکانومی کیا ہے نہیں ہے, ملک میں موجود ہے. اسی طرح اگر آپ جو بیگمات والی بات کریں وہ بھی ہو سکتا. This is getting میں interesting. نے پھر سے کہا کہ دیکھیں آپ اس ہستی کا تو ادراک کر سکتے ہیں کہ ماں کتنی عظیم ہستی ہوتی ہے. کیا کہا تھا ٹھیک ہے, ویک والا بھی تو میں نے بتائیں. والی بات کہا بتائیں. آپ بات تو سنیں نا پوری. ایک تو آپ سب خواتین کا یہی اب مسئلہ ہے نا صافی صاحب ظاہر ہاں, بیگم ہے صافی صاحب کے. تو میں نے کہا کہ آپ لوگ اس کا تو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ ماں کتنی عظیم ہستی ہوتی ہیں, لیکن میں نے کہا کہ بیوی کتنا وہ بڑا صدمہ ہوتا ہے. یہ آپ دونوں ہمارے ساتھ, کیونکہ آپ کی بیوی ہیں نہیں, آپ لوگوں کے میاں ہیں, یشوین تو وہ ہم سے پوچھیں. تو ان کا بھی تو شوہر نہیں ہے, ان کی بھی تو بیوی ہے خالی, تو یہ کیسے بتا سکتی ہے کہ تو شوہر میں نے کیا اپنی ہوتا ہے؟ بیوی کو یشوین سے پوچھیں میں نے صدمہ بیوی- عظیم کتنا ہے. میں نے بیوی کو کہا تھا, میں نے ان سے میں نے کہا گھر جانا ہے تھا بھائی کہ شادی کے بعد, نہیں وہ تو ان کو فکر ہونا چاہیے کہ انہوں نے گھر جانا ہے. ہاں یہ بھی ہاں. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہ آپ ایسا بیوی سے زمانہ آ ڈرتے گیا, ہیں, اپنی بیوی سے ڈرتے نہیں ہیں. ایسا زمانہ آ گیا کہ مرد تو یہ جرت کر سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو صدمہ جاریہ کہے, لیکن بیویاں یہ جرت نہیں کر نہیں، سکتی. میں تو کہ اپنے اس شوہر- سے یہی ہاں, ظاہر کہیں. ہوتا ہے کہ اصل طاقت کا ہے. ہاں جی, اسے یہی ظاہر ہوتا نہیں ہے نہیں, میں کہ تو ان اصل کو طاقت سامنے بھی کہتی ہوں کہ وہ صدمہ طاقت کا سرچشمہ بیگمات ہیں. آپ اپنی میاں کو صدمہ جاریہ کہتی ہیں. کہہ رہی ہوں, بھی کہہ رہی ہوں. آپ بیوی سے آپ میں کیوں کہوں گی جو نہیں ہے. اچھا تو نہیں ہے, واہ جی واہ. یہ جتنی بیگمات ہیں صافی صاحب آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. آپ بیوی سے ڈرتے ہیں, اپنی بیوی سے. کیوں نہ ڈرے گا, انسان ہوگا اور بیوی سے نہیں ڈرے گا. کہہ رہے ہیں کہ انسان ہو تو دیکھیں تو بیوی صدمہ کی جاریہ طاقت کا کیوں اندازہ کہتے ہیں؟ آپ میں نے اس بات سے میرا لگائیے. پورا فکرہ یہ تھا کہ شادی کے بعد بیوی صدمہ جاریہ ہوتی ہے اور شوہر بیچارہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. صافی صاحب These are golden words. یہ اس مذاق کے بعد ساری خواتین آپ کے پیچھے یہ پڑ جائیں کوٹیبل کوٹس میں جانا چاہیے. گی. یہ ساری بیگمات ساری خواتین آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے صافی صاحب. میرے پیچھے کیا, آپ نے اپنے شوہروں کے پیچھے پڑی رہے. کچھ ہمارے لیے وہ ہماری بیگمات والی کافی کی ہے. طاقتور ہونے کا اندازہ اس بات سے لگائیں, گھر میں بھی آپ ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے اور باہر بھی بات نہیں کر سکتے. نہیں وہ تو وہ تو کر کس طرح ریاکشن آ رہا ہے, وہ تو کہہ رہے آپ ریاکشن نہیں دیتے ہیں, آپ ہمیں بات ہی نہیں کرنے دے رہے. میں نے اپنی بیوی اپنا کا جملہ ذکر نہیں تو نہیں کیا, مکمل میں نے کر کہا پا رہے بیوی. کہ 5 خواتین, میرا مطلب ہے کہ 4 خواتین نہیں نہیں, ویسے میں مکمل ساری آج گنتی پوری نہیں. نہیں عادل میں مکمل گفتگو بتا دوں, اس کے فوراً بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ I'll make sure کہ عید کے دن اب تک نہ آئے میرے گھر پہ. تو ڈرتے تو وہ ہیں. ٹی وی اب تک چینل میرے گھر پہ نہ آئے. I'll make sure کہ میں کیبل سے ہٹا دوں تاکہ آپ کی بیگم صاحبہ کو یہ کلپ مکمل گفتگو لٹوا کے وائرل کروا کے میں نے بھیجوں گی. بیوی کا ذکر کیا, اپنی بیوی کا نہیں کیا. دیکھو فوراً ڈیفینسو ہو گئے. آپ وکیل تو نہیں ہے بھائی. اپنی کا ذکر میں نے ان کے ساتھ کیا تھا, میں ان سے کہوں گا کہ میں نے تو بیوی کا ایک ذکر منٹ, کیا. اپنی ماں کا ذکر کیا لیکن اپنی بیوی کا نہیں. بڑا fine point. Now Amber is behaving like a journalist. Now Amber is behaving. میں نے میں کہا یہ تھا نا, ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں جی کہ جو ماں کا ذکر تھا وہ اپنی ماں کا تھا. یہ جو بیوی کا ذکر تھا, ٹھیک ہے, جو بیوی کا ذکر تھا وہ شاید بس کسی دوست کی اس کا ذکر کر رہا دیکھا تھا. امبر نے کیسا فائن پوائنٹ پکڑا ہے, بالکل مسکراتے مسکراتے جو میں نے پہلے کہا. پکڑ لیا نا, دیکھ. آپ پکڑ میں آ گئے اس دفعہ. امبر, میں نے سنا ہے کہ آپ کو کوکنگ کا بہت شوق. شکر آپ بیویوں سے تو آگے بڑی. یہاں بھی کچھ ڈائریکٹ سوال خدا کا آنے شکر والا ہے کہ آپ کوکنگ پہ آگے. میں اتنی دیر سے یہ دعائیں کر رہا تھا, یا اللہ بیوی سے بات آگے بڑھ جائے. ابھی کھانے بھی نہیں جاتے. اپنی بیوی سے آپ کو لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے کہ ڈریں گے آپ. بس اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے تو ٹھیک ہے. بیوی کو لگتا ہے یا نہیں, یہ تو بیوی بتا سکتی ہے. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ کا پرسپشن کیا. نہ میں ان سے ڈرتا ہوں نہ وہ مجھ سے ڈرتی ہیں. ان کو بھی پوری آزادی ہے, مجھے بھی پورا اختیار ہے. ہم دونوں اپنے اپنے رائٹس ایکسرسائز کرتے ہیں. اچھا, آپ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں, والدہ سے یا بیگم سے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ ماں سے زیادہ دنیا میں کسی سے پیار کریں. اور بچوں کی ماں سے آپ اس وقت پیار کرتے ہیں جب آپ اپنی ماں کے پیار کا حق ادا کر چکے ہوتے ہیں. تو ادھر آپ کو اپنی اور لمیٹیشنز ہیں جس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کی بڑی امپورٹنس ہے کہ ہم عذرائے تفنن تو بہت بات کرتے ہیں. آپ کا مذہب جو عورت کو رسپیکٹ دیتا ہے, اگر وہ ڈیو رسپیکٹ آپ نہیں دیتے تو میں تو سمجھتا ہوں آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے. ماں کی ایک الگ امپورٹنس ہے, ماں کا کے لیے فرائض الگ ہے مذہب میں. میں تو اس کے بھی خلاف ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ماں کی خاطر اپنی بیوی کو جو ہے وہ گھر سے نکال دیں, آپ ماریں, آپ برا بھلا کہیں. مجھے بتا دو مذہب میں کہاں لکھا ہے کہ آپ ماں کے لیے اپنی بیوی کو مار سکتے ہیں. اب آ جائیں سوسائٹی پہ. میرے خیال ہے پاکستان میں خواتین کے ساتھ جہاں ایشوز ہیں, جہاں زیادتی ہے, ظلم ہے, وہاں بہت امپاورڈ بھی ہیں خواتین. پاکستان میں خواتین ہر فیلڈ میں ہمیں نظر آتی ہیں الحمدللہ. ہمیں جہاں ہم نیگیٹو سائڈ دکھاتے ہیں ہمیں پازیٹیو سائڈز بھی دکھانا چاہیے. ابھی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ 4 خواتین تو اس سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور جس فیلڈ میں بھی ہیں بہت اچھا ایکسل کر رہی ہیں. ہمیں صرف یہ نہیں دکھانا چاہیے کہ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے عورتوں پہ, ہمیں یہ بھی دکھانا چاہیے. یہ بھی ظاہر ہے, اس پہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم پریولیجڈ خواتین ہیں.
पढ़ी लिखी हैं, ऐसे घरानों से ताल्लुक हमारा लेकिन है। सोसाइटी नहीं, देखें, नहीं, नहीं, नहीं। सोसाइटी इसमें मैं gradually आगे थोड़ा सा- बढ़ती है। एंड देन हम में से भी बहुत सारी शुगर कोटेड है, यू डोंट नो कि उनकी असल जिंदगी क्या है। एंड देन हमारी प्रिविलेज दुनिया से हम अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो वो रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई है जिसके पास वो मींस नहीं है कि वो अपनी गाड़ी चला के आए, तो वो बसों में धक्के खाती हुई आ रही है। हमने एक प्रॉपर निजाम नहीं बनाया कि बसेस में आप इज्जत से आ जाएं या कोई और उसमें तरीके। एक problem सो है। इट्स नॉट दैट इजी कि हम चार से नजर आ रहे मुझे हैं। अगर इजाजत है थोड़ी सी ब्रेक ले लूं, बिल्कुल। ब्रेक के बाद वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल एक बच्चे का वेरी शॉर्ट ब्रेक, ज्यादा सीरियस हो रही है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है और ये होनी चाहिए ईद के दिन भी, जबकि आप लोग इस तरह के प्रोग्राम खास तौर पे देख रहे होते हैं। बट लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वापस आएंगे, यहीं से बात स्टार्ट करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक वंस अगैन। ईद मुबारक आप सबको बहुत बहुत। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी खवातीन की एम्पावरमेंट की। फरीहा इदरीस साहिबा, आदिल अब्बासी साहब कमेंट कर रहे थे। सो यू बोथ, मेरा तो ख्याल है हमारी सोसाइटी ग्रेजुअली आगे बढ़ रही है, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को अपने ज़हन में रखना लेकिन चाहिए। अंबर आपसे मैं disagree समझता हूँ करते पिछले अंबर का राइट है, यही तो डेमोक्रेसी है। इन लास्ट 18-19 इयर्स वी हैव सीन वुमेन आर एवरीवेयर, हमारी खवातीन आगे बढ़ रही हैं, हमें वो पॉजिटिव्स भी दिखाना चाहिए और जो नेगेटिव साइड है उसको भी हाईलाइट करना चाहिए और दोनों के राइट्स इक्वली जो है वो डिस्कस करना अंबर। चाहिए। देखिए मोटी मोटी जो बात है उस पे मैं इख्तलाफ नहीं कर रही। जरूर ऐसा मैं कहूंगी कि मैंने भी देखा है तो कि आप कहती हैं कि पेस स्लो है। पेस स्लो नहीं है, मैं देख रही हूँ कि इसका जो रद्द अमल जो आया है वो हमें मुख्तलिफ जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है उसमें देखा जा रहा है। हम वो कम होने में नहीं आ रहे। वो कम होने में नहीं आ रहा। और हम ये भी कहेंगे कि इसका ये नहीं मतलब कि जो आम औरत की जिंदगी है जो हमारी तरह प्रिविलेज नहीं है, जैसे हम चारों यहाँ बैठी हुई हैं, उनकी जिंदगी बेहतर हुई है, उनकी एक्चुअली नहीं बेहतर हुई। दैट इज आई थिंक ये जरूर हुआ है। Adil is saying is एग्जैक्टली precisely, आई नो हाँ। कि बहुत सारी खवातीन हैं जो ऐसे पेशे अपना रही हैं जो पहले हम इतना ज्यादा देखते नहीं थे। हम ज्यादा आगे बढ़ी हैं, चाहे सियासत में हो, चाहे सहाफत में हो, चाहे वो पायलट्स बन रही हो, लेकिन हरकत तेज तर है लेकिन रफ्तार से बेसिकली उसका- खरीदा बहुत कुछ हुआ है, right बहुत कुछ होना हो रहा है, चाहिए। लेकिन बात जो है असल में वो ये है कि गुंजाइश अभी बहुत नहीं, औरत बाकी के है, पास काफी, बेसिक बहुत राइट होनी चाहिए एज ए ह्यूमन कि वो वर्किंग होना चाहती है या घर में बैठना चाहती है। आप हम जानते हैं यूरोपियन ममालिक में अगर आप मदर हैं तो द स्टेट हेल्प्स यू, सपोर्ट्स यू। आपको काम करने की जरूरत नहीं है अगर आपको जरूरत है अपने बच्चों को पालने की भी। सो ये राइट्स, अगर आप सड़क पे जा रहे हैं तो आप जा सकें, अगर आपको बच्चे की दवाई लेने जाने हैं तो आप जा सकें, हॉस्पिटल्स में अकेले घूम सकें। ये चीजें, ये राइट्स होते हैं मेरी नजर में। Exactly. बाकी आप करना क्या चाहते हैं, कपड़े क्या पहनना चाहते हैं, आपका एक डेकोरम है, वो सोसाइटी ही उसका तयन करती है। दुनिया में ऐसे होता है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। सो आई थिंक बेसिक राइट्स होने चाहिए। साफी साहब, देखिए एक तो वो चीज़ें हैं ना कि ज़ाहिरी बात है कि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और यहाँ पे हर तबका जो है वो मर्द हो, ख़वातीन हो, वो टीचर हो, वो कोई दूसरा हो, उनको डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह बुनियादी हकूक़ उसी तरह मैसर नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान में इसी हिसाब से और भी तह दर तह ऐसे मजालिम जिसके मर्द भी शिकार बनते हैं कि जिसका बाकी महज़ब दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। तो किसी हद तक आप लोगों की शिकायत भी बजा है, लेकिन किसी हद तक जो है ये भी है कि शायद पाकिस्तान में ख़वातीन का अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जितना एहतराम है तो शायद या जितना स्पेस भी है। मैं एक अगेन नुक्ते से इख्तलाफ करूंगी, क्योंकि जो एहतराम और इज्जत खवातीन को मिलती है वो रिश्ते की बुनियाद पे मिलती है, वो बहैसियत एक खातून को शख्स, इंसान होने इंसान के हवाले से नहीं मिलती। और यही फर्क है जो थोड़ा सा जो मसला पैदा करता मेरा है। ख्याल है जो बात साफी साहब कर रहे हैं, मैं बीइंग ए मर्द अपना मैं एक्सपीरियंस बताऊं। देखिए आप मर्दों में भी हर तरह होते हैं, हाँ, बिल्कुल, ये तो लेकिन बिल्कुल मेरे हर बात है। जगह पे मैं खातून को एहतराम देता हूँ, उसमें रिश्ता हो या ना हो, मैं अपने से उसको मुकद्दम समझता हूँ। ये बात 100% एग्री करेंगे और ज्यादा बहुत संजीदा ना हो जाए। इवन दो कि ये मामला, ये इश्यूज बहुत अहम हैं, संजीदा हैं, अभी भी देखिए संगीन यहाँ हैं। एक खातून बैठ के हम सबको डिक्टेट कर रहे हैं। नहीं, not at all, कोई डिक्टेट नहीं कर रहा यहाँ पे। बखुशी मैं तो बरसा खामोशी से सुन रही हूँ आप सबको। आप अपने प्रोग्राम में भी डिक्टेट कर रहे होते हैं। नहीं, मैं तो आपने खुद बताया कि मैं बड़े इल्तिजाई अंदाज में आप धीमे अंदाज में करते हैं, अभी देखिए मैंने आपको बड़ी मिसाल दी। देखें पाकिस्तान का मैं समझता हूँ सबसे शरीर, ठीक है, सबसे चालाक, सबसे तेज़
इंसान जो है वो फवाद चौधरी है, उसको एक खातून ने आके किस तरह इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से बाहर किया। बाहर कर दिया, ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है तो फिर और भी क्या आप लोग कहते हैं ये वो है। खातून तख्त या तख्ता दोनों कर सकती है, ठीक है। आपका मतलब है। कितना ताकतवर इदारे लगे हुए हैं, कितना मुल्क लगे हुए, कहते हैं बुजदार को हटा दें, पीछे से एक खातून की ब्लेसिंग है, कोई हटा के दिखा दे। ये आगे रहा नहीं गया, रहा नहीं गया, उनका point रहा नहीं गया उनसे, उन्होंने फिर करना भी आप लोग कहते हैं हम एम्पावर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कहाँ Behind पे आप- every successful person is a woman, no matter how incompetent he is. हर तबाही के पीछे भी कहीं ना कहीं हाथ होता है। अच्छा, हम बात करते हैं ये खवातीन के एम्पावरमेंट से पहले कि अंबर loves cooking. मुझ पे ये अंबर loves cooking. ये सवाल भूल ही नहीं थे आप। I'm a foodie. I'm a foodie. इतना फूड सामने इसीलिए पड़ा मैं हुआ है. खाना पकाती हूँ क्योंकि बिकॉज आई एम अ फूडी टू। You're a foodie. हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो जाहिर है जिसको मुझे लगता है कि जिसको खाने का सबसे शौक अच्छा है, क्या पकाती हैं? बहुत सारी चीजें अच्छी बना लेती हूँ, बहुत सारी चीजें मुश्किल सवाल है। पाकिस्तानियों का फेवरेट फूड तो बिरयानी है. हाँ बिरयानी अच्छी बना लेती हूँ और 2-3 किस्म की बना लेती हूँ। जबरदस्त. हैदराबादी. हैदराबादी बना ले, लाहौरी सिंधी बिरयानी? एक्चुअली, सिंधी क्योंकि मैंने अपनी फुप्पो से सीखी थी। अच्छा। वो कराची में रहती थी तो उन्होंने वहां से सीखी थी। आलू वाली विदाउट आलू. आलू के साथ, सिंधी आलू के साथ होती है। हाँ एग्जैक्टली, तो वो भी पसंद है। लेकिन फिर एक इसके अलावा निहारी आप अच्छी निहारी भी बना लेती हैं? मसाला खुद। इनविटेशन कब आ रहा है? Invitation. एक दिन अपने प्रोग्राम में बुला के मुझसे पूछती हैं आप क्या क्या बना सकते हैं, तो मैंने एक डिश का बता दिया, वो तो खैर बाद में मुझे घर में फौरन डिमांड आ गई क्योंकि मैंने शादी से पहले बनाई थी। तो मैं नहीं बना सका दोबारा। ऊपर से अभी वो सवाल खत्म नहीं हुआ था तो असाद कहती हैं अच्छा इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? मैं कहा, ये मेरे साथ किया था। तीन चीजें मैंने बताई होंगी तो फिर साथ में इनकी पता नहीं कोई एक और इनकी गेस्ट थी, वो तो कोई कुकिंग एक्सपर्ट नहीं, गालिबन कोई मॉडल थी शायद। तो उन्होंने तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी तो आपने जो चीजें बताई हैं तो 20% है, 80%। चूना लगाया था ना, पकड़े गए। तो वो आज तक मुझसे घर में पूछा जा रहा है वो डिश बना दें। जैसे मैंने फरिया के शो में कहा था कि मैंने ब्राउनीज बेक किया, तो उससे फौरन से कहा इंग्रेडिएंट्स बताओ, ऐसे नहीं माने। मुझे जो इंग्रेडिएंट्स बताए थे वो अभी तक आप ब्राउनीज बेक कर लेती हैं? ट्राई की थी भाई, यही बताया। इंग्रेडिएंट्स बताएं. इंग्रेडिएंट्स बताएं. बहुत आसान। इंग्रेडिएंट्स बताएं. खुदा के लिए ब्राउनीज की इंग्रेडिएंट्स तुम्हें नहीं आते खरीदने? अब मैं लेट मी गेट सीरियस कॉर्नर खरीदा। ब्राउनी का बॉक्स खरीदें, इंस्टेंट केक। वाह वाह, अच्छा ये नहीं मैंने किया था। बना लिया। क्या हुआ खराब कर दिया? इंस्टेंट हलीम का डब्बा, इंस्टेंट हलीम का डब्बा, क्या मजा? ये आपने मुझे जवाब दिया था, मैंने आपको वापस दे दिया। ये मैंने नहीं दिया था। साफी साहब, आप खाना पसंद करते हैं बनाना? नहीं बना नहीं सकता, बना मतलब कुछ तो बना लेते होंगे आप. अंडा बना लेते होंगे? नहीं। अंडा तो बना लेते होंगे. कभी अटेम्प्ट नहीं किया जिंदगी में? अंडा भी नहीं बनाते आप? असल में मेरी एक तो ये खुशकिस्मती सिस्टर्स इतनी ज्यादा थी कि कभी जो है घर में ये नौबत ही नहीं आई। अच्छा माशाल्लाह, ठीक कितनी है। सिस्टर्स हैं आपकी? 6 सिस्टर है मेरी। 6 सिस्टर्स हैं माशाल्लाह, तो भरा पूरा घर और ना होगा उस आपका, हाँ, हाँ? और उसके ईद पे बाद खूब भी घर हंगामा में होता आबादी होगा. ज्यादा है तो कभी नौबत ही नहीं आई। तो सच्ची बात और ये खाने में क्या पसंद है? क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम मिल रहे हैं तो अंबर हमारे लिए बना के आ रही हैं, तो अंबर के लिए बता दें कि आपको खाने में क्या पसंद अच्छा, अम्मा ने कोई हम सेल्फ इन्विटेशन दे रहे हैं, सेल्फ कोई ऐसी इनविटेशन नहीं दी है। इन्विटेशन दे रहे हैं. खाने में क्या पसंद है? जो भी चीज अच्छी बने। यहाँ जो चीजें पड़ी इसमें से क्या पसंद है आपको? केक? हम प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं तो ये केक आपसे काट तो लेते हैं केक? हाँ काट लूंगा, आजकल चलो। खा नहीं सकता लेकिन काट लूंगा आप लोगों को। चलें, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम देखने के लिए. सलीम साफी साहब, फरिया इदरीस साहिबा, अंबर शमसी साहिबा, यशफीन जमाल साहिबा, आदिल अब्बासी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very आप much सबको so much. फिर ईद मुबारक. आप ईद मुबारक. सबको ईद मुबारक. और सलीम साफी साहब हम सबके सीनियर केक काटेंगे एक्सपीरियंस में सीनियर. अच्छा प्लीज बिस्मिल्लाह नहीं, अब कीजिए, ऊपर में भी senior हैं, हमें- प्लीज बिस्मिल्लाह कीजिए. ये लीजिए, ये इससे केक अच्छा। काटते हैं, इससे केक काटते हैं साफी साहब, उससे केक के पीसेस उठाते हैं. कहाँ से काटेंगे? जहाँ से ईद मुबारक से काट दें आप. ईद बुरी बात है, ईद को तकसीम नहीं करना चाहिए। ये आपने खूबसूरत बात की मुझे है. मुफ्ती मुनीब रहमान और पोपलजई ना बनाए ना, मैं इस तरह से खा लेता हूँ, ये तो वैसे ही मुनक़सिद ताकि ईद वही ना, वैसे ही होगी ये तो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. ईद मुबारक. इसके साथ हमारा प्रोग्राम क्लोजिंग की तरफ जाएगा. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया.